Okay. Assalamu alaikum, everyone, and good morning. I hope कि आप सारे ठीक ठाक हैं and managing well with the pandemic. Um, okay, those who are new to the course, recently अगर आपने enroll किया है तो welcome. This is our third lecture today, and we are talking about stratospheric chemistry. Or before going into the details, or before formally starting the lecture, let's do some review things. And the very first thing is about the honor pledge. If you haven't submitted that yet, please do that by today. And the way to do that is just you take the honor pledge text from the syllabus on LMS and handwrite it, और उसको sign करके date भी डाल दें उसके ऊपर, and then you upload it on the LMS folder. आपका जो अपना LMS folder है उसके ऊपर, ठीक है? There's a question from Hassan Ahmed. How are you doing in isolation? I actually, I'm no more in isolation because I waited for 7 days, and I think that I'm okay so far. So I'm back to office now, and I hope that it will be fine further. And the second thing, I was just going through, skimming through the lectures, the recorded lecture, and I saw that I am mentioning ppm not correctly there. You might have noticed that too, because I think I'm saying 100,000 and it's not 100,000. Parts per million, of course, it's the, something in 1 millionth of something else, right? For example, how many ozone molecules are in there in 1 million molecules of the air? So that would be, ozone concentration in ppm. The third important thing is the poll results, which I conducted, I think, on weekend, just to see, because this situation was quickly, evolving, and there are some government guidelines, and also from the Higher Education Commission with the number of students on campus. And so here is the result. I got 34 responses. Maybe I got one more, but I was not able to take the latest picture. But this is how it is, the situation at the moment. So almost 53% of you think that the course should be purely online. 26.5 think that both ways are working for them, and 20.6 people believe that it should purely be on campus. So I would like it to be, on campus as it was planned, but, I cannot promise, because if the situation is that, अगर गवर्नमेंट आपको नहीं करती अलो तो बड़ा मुश्किल होगा हमारा, ठीक है? So what we are going to do, still जो ही मुझे कोई इतला मिलती है, तो I have told the school that I would prefer to teach it on campus, okay, as originally planned. But in dire need, of course, I would be open to the online. I think we all would be, because nevertheless, the safety of ourselves and others is the top priority. Okay, there are some questions about the essays. I think do remind me at the end of this lecture. I would explain what are the essays. These are not basically the essays. I think in the assignment section, there could be a total of 4 things. You might be asked to write an essay on any topic of interest, because, it is because of the nature of this course that it's a theory course, right?
So there's a lot of stuff that is related to general public and understanding of the layman as well. So there are some topics for which you may be asked to write the essays. And for other stuff we have some problem sets. आपको वो भी मिल सकते हैं करने के लिए, ठीक है? तो they broadly fall under the category of assignments, right? So for example, one of the essays which I'm going to give you for the writing is on the air monitoring of the Lahore. Okay, so इसमें होगा ये कि आपने सारा historical background देखना है कि what is the situation, कब से ये ऐसा हो रहा है, how we are monitoring of air के अंदर chemistry क्या चल रही है, किस तरह के pollutants के साथ में deal कर रहे हैं, all stuff. तो ये एक तरह का ऐसे हो जाएगा कि breathing in Lahore air kind of thing. उसकी सारी details दी होंगी कि आपके कितने words होने चाहिए, उसका ब्रेकअप आपने कैसे करना है, ठीक है? और बाकी जितनी भी गाइडलाइंस है ना वो मिली होंगी. सो आई थिंक इट विल बी द नेक्स्ट लेक्चर जिसके अंदर मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आपका पहला जो असाइनमेंट है वो उसमें मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आई विल बी टेलिंग यू इन मोर डिटेल्स. तो ये जो सिचुएशन है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो ही कोई डेवलपमेंट होती है ना तो आई वुड बी कम्युनिकेट टू यू इमीडिएटली, ठीक है? और फिर ताकि अकॉर्डिंगली आप लोग प्लान कर सकें. ओके, सो क्या ख्याल है, फिर शुरू करें आज का हम लेक्चर? ओके, लेक्चर से पहले इट्स ए हैबिट तकरीबन हमारी कि डू वी हैव पीपल इन वेटिंग रूम? ओके, ओनली वन. हम ये करने जा रहे हैं कि just for a quick review of what we discussed in our last lecture, I'm going to give you this poll. So there's a link in chat box. Just click on it. और उसके बाद उसमें वैसे तो मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन I think there's only 1 question there. और आप उसे अटेम्प्ट करके देखेंगे क्या ख्याल है आपका. ठीक है, it's a simple question, multiple choices हैं, and you need to choose the right option. And I can even share the, sorry. Yeah, so I can see the progress of this poll in real time, and I can also share the screen with you when it is done so that we could have an overview कि किस तरह का हमारे पास poll जा रहा है इसमें. Okay, yeah. So the link is now shared again. Okay, I think again. So we are doing this activity for 1 minute, and then it will be locked, and I will share the results with you. I will share the link again because I think people are still joining and you can't access the chat. Okay, so how many responses I have received so far?
I think, yeah, 19 responses, 20. And let's do it for 30 seconds and more, and then conclude this activity. "21 responses, 22. So I think we are very close. And okay, so what I'm going to do is to share my screen with you again. And this is the result of our poll in front of you. I hope you are able to see. So you can see that majority of the responses say that ozone is basically absorbing the light in 320 to 400 nanometer range. इसके बाद 38% का ख्याल है कि इनमें से कोई भी ऑक्सीजन या ओजोन में से कोई भी ये absorb नहीं करती है, and 17% think that it is the oxygen that is 320 to 400 nanometer. So 320 to 400 nanometer is that part of the ultraviolet radiation that is near to the visible region. You know, from 400 degrees at 400 nanometer to 750 nanometer, it is the visible region. It is the white light that we can see with our eyes. और UV का वो हिस्सा जो visible के पास होता है, हम उसे UVA कहते हैं, UVA. And we know that UVA reaches Earth. It is neither absorbed by ozone nor by oxygen, and most of it is penetrating the atmosphere and reaching the Earth's surface. अब ओजोन कहाँ पे अब्जॉर्ब करती है? ओजोन का हम अभी मैं आपको स्पेक्ट्रम दिखा देता हूँ. आई थिंक इट्स मोस्टली फ्रॉम 220 टू 320. इस रेंज के अंदर इसकी ज्यादा अब्जॉर्प्शन होती है नैनोमीटर की. ऑक्सीजन का हमें पता है कि इट्स राइट देयर इन द अपर स्ट्रेटोस्फीयर. नो, it's above stratosphere, the layer which is called the mesosphere. और mesosphere के अंदर ऑक्सीजन का हमने absorption spectrum देखा था, तो it absorbs UVC, यानी वो जो रेडिएशंस हैं जिनका 80 से लेके 120 नैनोमीटर की रेंज में वेवलेंथ होता है, ये उसको अब्जॉर्ब करती है. जब उसको अब्जॉर्ब करती है तो इट स्प्लिट्स अप इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको शो किए हैं, हम इनको जरा देख लेते हैं. सिर्फ एक ही हमने बात की. So what do you think? Which atmospheric gas is primarily responsible for filtering sunlight in 120 to 220 nanometer? This is UVC. So UVC is absorbed by oxygen. So इसका मतलब है कि 1 के लिए हम ऑक्सीजन कहेंगे. Which gas absorbs most of the sun's rays in the 220 to 320 nanometer? This is UVB. और UVB में हमें पता है कि ओजोन अब्जॉर्ब करता है और वो स्प्लिट हो जाता है. ठीक है. So most of UVB and UVC are filtered out because they are absorbed in stratosphere and mesosphere, mesosphere and stratosphere, and the region 320 to 400 nanometer is not absorbed by any gas and it reaches the Earth's surface. ठीक है. तो ये इसका जो conclusion था वो इस तरह का हमने कर लिया. ये सारी बातें हमने अपने last lecture में की. What we are planning for today. We ended up in this slide here, where we were talking about the creation of ozone in the atmosphere. And if you still remember, Ji Hanian, there's a question. Please go ahead. Sir, the screen hasn't switched. हम अभी भी poll results. Oh, sorry. Yeah, sorry. So let me do that again. I forgot. I think I should repeat now what I was talking about or what I was referring to. Here are some questions जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताने की कोशिश की है. The very first question is कि यहाँ पे I think it is blocked by my image. तो I should decrease the screen size. यहाँ पे आप देखिएगा कि which gas, atmospheric gas, is responsible for filtering sunlight in 100 and 220 nanometer? This is UVC, and we know oxygen does that. So which gas is absorbed
which gas absorbs the sun's radiations or rays in 220 to 320 nanometer. This is UVB, and ozone does that. And for third one, this is UVA, so answer is none. Okay? This is the part that reaches the earth. So ये इसका conclusion हो गया. We were here, हमने ये कहा था कि जो ozone है, how it is created. So अगर आपको मैं बताता जाऊं, this is troposphere, this is stratosphere, and this is mesosphere. And what we are showing here, it is the temperature, and see how it is decreasing with altitude in troposphere, and then it raises up with altitude in stratosphere up to the maximum almost, and then it drops back. ये टेम्परेचर एनॉमलीज जो हैं इसके अंदर पूरी एक केमिस्ट्री है जो कि ओजोन की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, और दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है और उसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर है वो रेज अप हो जाता है. सो जस्ट टू क्विकली रिमाइंड अस कि दिस इज द रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ ओजोन. यू नो कि इन केमिस्ट्री वी हैव ए लैंग्वेज, जिस तरह से मैथमेटिक्स के अंदर वी यूज द केमिक यू नो इक्वेशंस टू यू नो पूरा का पूरा एक चीज उसके अंदर एक हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है. दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेन लॉट्स ऑफ थिंग्स. तो इसी तरह से दिस सिंबॉलिक जो एक लैंग्वेज है वो केमिस्ट्री के अंदर भी है. इंस्टेड ऑफ यू नो describing them in text, we prefer them to write them in this equation form. This is called a chemical equation, और इसके दो ends होते हैं. इतनी chemistry आपको अभी भी आती है. So here in this, you can see that O stands for the atomic form of oxygen, which is very reactive, and it is looking for things to react with. And this is O2 is the molecular oxygen, which is the stable form of it. And M is anything that is just there to dissipate the energy in the form of heat, जो कि उसको carry out करने के लिए है, ठीक है. Various substances इसके अंदर हो सकते हैं. So atomic oxygen basically reacts with O2 to produce ozone. And we said that this reaction basically happens here because this region is UVC region, right? Why? Because this is the oxygen molecule that has the ability to absorb UVC. And when it does that, it converts, it dissociates, or dissociate होके atoms बनाता है. और चूंकि we had two atoms in the molecule, now both of them are in the atomic form. So this, coefficient here, जो आपको represent करता है कि how many numbers of things are there. Here is one molecule, here is two atoms. अब हमने ये कहा था कि they mostly combine together to give this oxygen back. So यहाँ पे ओजोन नहीं बनती क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है. हमें पता है जो हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन कम होता जाता है. लेकिन यहाँ पे भी ये रिएक्शन कुछ हद तक होता है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, और इस रिएक्शन से एटॉमिक ऑक्सीजन इधर भी बनती है. अब वो एटॉमिक ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वैसे भी ज्यादा है. दैट ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद एटॉमिक ऑक्सीजन एंड क्रिएट्स O3, जिसे हम ओजोन का नाम देते हैं, ठीक है. तो स्ट्रेटोस्फीयर में दिस इज हाउ इट इज फॉर्म्ड. M हमने इसलिए रखा हुआ है कि जस्ट टू we need to carry away the heat, or M is the thing that will take the heat away. हाँ, तो बेसिकली इसके अंदर हमने ये कहा था कि इसी हीट की वजह से आप देखें कि टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, विद हाइट. क्योंकि हाइट के साथ हमें बेसिकली मोर एंड मोर ओजोन इज फॉर्म्ड. आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? टुडे इट इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन्स. सारे के सारे मैकेनिज्म्स हमने देखने के हाउ ओजोन इज डिस्ट्रक्टेड इन स्ट्रेटोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, कहाँ ये डिसोसिएट होती है, ठीक है. So there are two type of the mechanisms जिन्हें हम देख सकते हैं. पहला जो मैकेनिज्म है वो है नॉन कैटालिटिक, यानी उसमें कोई ऐसी स्पीशीज इन्वॉल्व नहीं होती जो कि इस प्रोसेस को स्पीड अप करें.
कैटलिस्ट एक ऐसी टर्म आ गई है कि जो हम एवरीडे लाइफ में भी हम इसे यूज करते हैं. कैटलिस्ट आर थिंग्स दैट speed up the processes are chemical reactions and they are not consumed. इसका मतलब है कि at the end of the cycle or the reaction you get them back and they can participate in another cycle and another so on. ठीक है? So they are not consumed, they are not spent, but they speed up the reactions. यानी उनका जो रेट होता है उसको वो तेज करना शुरू कर देते हैं. तो दूसरा जो स्टेप है वो है जाहिर बात है कि कैटालिटिक प्रोसेसेस है. तो पहले मेरा ख्याल है कि हम जो नॉन कैटालिटिक प्रोसेस है उसको देख लेते हैं. अच्छा, इसके लिए I have shown you the spectrum, absorption spectrum of ozone here. And what is the maximum absorption of ozone molecule? Somewhere here हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये तकरीबन हम कह सकते हैं कि 255 नैनोमीटर इसका लैम्डा मैक्स कहते हैं हम इसको, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में. लैम्डा इज द वेवलेंथ और मैक्स का मतलब ये है कि ये वो वेवलेंथ है जिसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है. ठीक है, लेकिन हम देख सकते हैं कि इट्स ए सिंपल गॉसियन टाइप ऑफ कर्व एंड वी कैन सिंपली से दैट इट एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस फ्रॉम 210 टू तकरीबन 320 डिग्री, क्योंकि हमने नॉट डिग्री 320 नैनोमीटर. ये इधर ही एंड नहीं होता, वी कैन एक्सटेंड इट एंड वी कैन सी कि ये तकरीबन जाके 220 पे हम ये शुरू होता है. तो ब्रॉडली स्पीकिंग 200 से लेके 320 नैनोमीटर तक जो भी रेडिएशन होगी ओजोन मॉलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ absorbing it. You might remember one problem which we solved in our last lecture, or it was something about what is the maximum wavelength that ozone molecule can absorb and it has the right energy to split it up into the oxygen molecules. You remember that? उसके लिए बड़ा सिंपल सा हमने एक फॉर्मूला देखा था. वो हमने ये कहा था कि अब मुझे भी एग्जैक्टली उसके नंबर नहीं याद, बट इट वाज समथिंग कि एनर्जी ऑफ is equal to 119. मैं इसको राउंड कर रहा हूं. There are some figures, आप चेक कर लीजिएगा. Divided by lambda in nanometers. ठीक है, यानी ये वो रिलेशन है जिससे आपको पता चल सकता है कि what is the right amount of energy to dissociate something. ठीक है, for example, अगर आप if you are interested कि what is the energy required to carry out this reaction, यानी वो कौन सी रेडिएशन है जो इस रिएक्शन को कर सकती है. तो आप यहां से इस इक्वेशन को लैम्डा के लिए सॉल्व करें तो आपको पता है. इसका मतलब है कि आपको एनर्जी की वैल्यू का पता होना चाहिए, और वो एनर्जी ये होती है, हम इसको यूं करते हैं कि फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज सम एंथैल्पी, मतलब दिस इज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो एसोसिएटेड होती है. हम समटाइम्स इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो दैट वी सेड कि हमने इस इक्वेशन के जरिए इसको इक्वल किया हुआ है टू दिस एनर्जी टर्म हियर. यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन फाइंड. और हमने ये देखा था कि फॉर ओजोन मॉलिक्यूल यानी ओजोन का ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना बाय the removal of one oxygen atom, यानी ये देखें ना, ये केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो शॉर्ट हैंड टाइप में उसको साथ लिखता जा रहा हूँ. फॉर दिस रिएक्शन वी सेड कि देयर इज सम एंथैल्पी एसोसिएटेड विद इट, और उसकी वैल्यू हमें पता थी जो हमने कहा कि दैट इक्वल्स बेसिकली द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, और दैट किलो जूल्स पर मोल में जो एनर्जी टर्म है उसको हम इसके इक्वलाइज कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं. और वो जो वैल्यू आई थी हमारे पास लैम्डा की, द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट इज कैपेबल ऑफ स्प्लिटिंग दिस ओजोन इनटू ऑक्सीजन, एंड दैट वाज कितना 1000 था, 1100 नैनोमीटर के करीब. तो ये जो रेडिएशंस हैं ये नियर इंफ्रारेड में फॉल करती है. इंफ्रारेड को हम IR लिखते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी के लिहाज से देखा जाए तो यूवी इज फार मोर एनर्जेटिक देन विजिबल, और IR यहां पे स्टैंड करता है. ठीक है, यानी इसकी एनर्जी बहुत कम होती है. ठीक है,
यहाँ से टॉप से बॉटम एनर्जी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो सबसे एनर्जेटिक यूवी है, फिर विजिबल है, फिर आईआर है। तो इसका मतलब है कि ओजोन तो बड़ा डेलिकेट सा मॉलिक्यूल है। इवन अगर आप उसको इंफ्रारेड रेडिएशन देंगे तो उससे भी वो स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। तो ये, लेकिन अब वो इंफ्रारेड अब्जॉर्ब नहीं करता, अब्जॉर्ब तो वो जरूरी तो ये चीज है ना कि वो जो रेडिएशन है वो अब्जॉर्ब भी करे। तो अब्जॉर्प्शन इसकी हमने देखा कि वो किसी और जगह पे है, और वो अब्जॉर्प्शन होती है इसकी फ्रॉम 200 टू 300 नैनो 320 नैनो, राइट। थिंक यहाँ पे इसको सामने रखते हुए मैं आपको ये बताता हूँ। पहली चीज तो हमने ये सीखी कि भाई ओजोन एफिशिएंटली अब्सॉर्ब्स यूवी लाइट, ठीक है। स्पेक्ट्रम अभी देखा है, ठीक है। एनीथिंग शॉर्टर देन 320 नैनोमीटर अभी बात की हमने, ओके। व्हाट हैपेंस व्हेन इट अब्सॉर्ब्स दैट रेडिएशन, इट गेट्स एक्साइटेड, ठीक है। यानी उसके अंदर वो जो इलेक्ट्रॉनों की तरतीब है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। Some of the electrons from their stable or lowest energy state get to the high energy uh, electronic states, जिसको हम कहते हैं excited state. And we always show this excited state with the help of uh, a star या asterisk के तौर पे हम उसको शो करते हैं, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे, केमिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि when ozone takes up a UV photon, but the condition is that must have a wavelength less than 320 nanometer, otherwise it will not be absorbed, because this is the maximum in ozone molecule and absorb. So it gets excited and then splits up into oxygen and molecular oxygen and atomic oxygen. अब इनके ऊपर स्टार हमने क्यों शो किए हुए हैं कि they are the products of this chemical reaction, but they are still in the excited state. This is different from the molecular oxygen. And this one is different from the atomic oxygen. ठीक है? Slightly. Star इसलिए हमने show किया हुआ कि they are in the excited state. ठीक है? They are still, electrons in them have sufficient energy to occupy the high energy states, not the low energy states. ठीक है? तो इसी वजह से फिर ये है कि दे आर स्टिल रिएक्टिव और फर्दर केमिकल रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहली बात तो हमने ये देखा कि ओजोन ने यूवी फोटोन अब्सॉर्ब किया, स्प्लिट ही हो गया। दिस इज बेसिकली द रिएक्शन दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द ओजोन डिप्लेशन, ठीक है, along with many other reactions. अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं दे रिएक्ट विद the ozone molecules, ठीक है। मसलन दूसरा स्टेप हमें ये लिख सकते हैं कि the atomic oxygen that is formed that can take up another ozone molecule, ठीक है। और हम इसको यूं लिख रहे हैं कि ozone reacted with atomic oxygen and क्या बन गया, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए ना कि आसानी के लिए हम इसको यूं लिख सकते हैं कि आपने केमिस्ट्री इज नॉट योर मेजर, लेकिन जस्ट आसानी के लिए आप देखें कि दिस इज हाउ वी राइट इट, ठीक है। बल्कि मैं अगर बॉन्डिंग भी शो करूं तो दिस इज हाउ वन ऑफ द स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन इज समथिंग लाइक दिस। बट आपकी आसानी के लिए ये बता रहा हूं कि आप जैसे O3 ऐसे लिख लें। तो आप देखें कि ये आपस में कंबाइन कर लेंगे, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया और ये दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेकंड रिएक्शन है दैट इज आल्सो डिस्ट्रॉइंग ओजोन, यानी ओजोन को डिस्ट्रॉय करने में दो चीजें हैं, एक तो यूवी फोटॉन है। अब 320 नैनोमीटर का मतलब ये हुआ कि यूवी बी और यूवी सी दोनों ओजोन के साथ अब्सॉर्ब हो सकती हैं एंड दे कैन स्प्लिट ओजोन। दूसरा रिएक्शन मैंने देखा कि ओजोन कैन आल्सो टेक अप सम एटॉमिक ऑक्सीजन्स एंड देन स्प्लिट अप इनटू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। लेकिन ये जो सेकंड रिएक्शन है दिस इज नॉट एफिशिएंट। एफिशिएंट होने का मतलब ये है कि देयर इज सम एनर्जी पुश इन्वॉल्व, इट नीड्स सम एनर्जी पुश। ये ऐसा ही है जैसे आप देखें ना समटाइम्स कि सुबह जो उठना है ना वो बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। और आपको यू नीड ऑलवेज नीड ए लिटिल हम्प कि भाई किसी तरह से एक दफा आप बिस्तर से निकल जाएं तो उसके बाद आप सारे ही काम कर लेते हैं, ठीक है।
लेकिन ये है कि वो जो बिस्तर से निकलना है ना, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो जिस तरह से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है एक, जो बिस्तर से निकालने के लिए चाहिए, आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम मुझे जरूर चाहिए। तो मॉलिक्यूल्स के लिए भी ऐसा ही है कि इन ऑर्डर टू टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन दे नीड सम एनर्जी पुश, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी, मे बी दे आल्सो नीड ए कप ऑफ एस्प्रेसो, ठीक है। सो दिस ए कप ऑफ एस्प्रेसो इज देयर एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब होता क्या है कि 17 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी इनको चाहिए होगी टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। अब एटमॉस्फेयर में इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती, लिहाजा दिस रिएक्शन इज क्वाइट, मतलब आप यूं समझ लें कि इसका कंट्रीब्यूशन बड़ा कम है, ठीक है। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी का अगर कॉन्सेप्ट में आपको जल्दी से बता दूं तो वो ये होता है कि अगर हम इस तरह से प्लॉट करें, सो दिस इज द रिएक्शन प्रोफाइल या रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, and energy term is on this side, यानी this side पे ये increase होती जा रही है, and we have reactants at some energy, and then we have products at some energy. So products जो हैं, their energy is in this case is lesser than the reactants, ठीक है। That's why there is a, this is basically the driving force कि reactants अगर products में convert होते हैं तो ये अपनी energy में कम करके more stability gain करते हैं। But in order for reactants to be converted into the products, they need to go uphill. और ये जो uphill रास्ता है इनका यहां से यहां तक, इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ये जो uphill फार, इसे हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। और जो कैटलिस्ट होते हैं वो बेसिकली इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ऐसे कम करना ठीक टर्म नहीं है, ये आपको कोई दूसरा रास्ता बता, आपको कहेंगे कि भाई आप यूं चले जाओ, इस रास्ते में आपको जो स्लोप है वो इतना ज्यादा नहीं है, आपको इतना अप हिल नहीं जाना पड़ेगा, और एक्टिवेशन एक अलग आपको रास्ता दे देता है जिसमें लो एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो हम उनको कैटलिस्ट का नाम देते हैं। आई होप दैट दैट क्लेरिफाइज की। तो इस केस में ये जो अमाउंट है एक्टिवेशन एनर्जी का, दैट इज क्वाइट हाई। तो ये रिएक्शन इतना इसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं होता, ठीक है। सो व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि there are many reactions by which ozone is created, जैसा कि हमने आखिरी स्लाइड पे जो पिछला लेक्चर खत्म किया था, अभी हमने उसको रिव्यू भी किया है कि ऑक्सीजन इज क्रिएटेड इन द एटमॉस्फेयर एज वेल एज डिस्ट्रॉयड। तो इसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म है जिसे हम कहते हैं चैपमैन मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म इज द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस, तो जो एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ ए केमिकल रिएक्शन बेसिकली हैपेंस, ठीक है। यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजें कैसे हो रही हैं, कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, हम उसको मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो चैपमैन मैकेनिज्म एक्सप्लेन्स दैट कि हाउ ओजोन वाज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन 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 द एटमॉस्फेयर। और मेरा ख्याल है कि ये इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है, लिहाजा मैं इसको बजाय ड्रॉ करने के आई वुड जस्ट यूज द एनिमेशंस ऑफ द पावर पॉइंट सो कि हम क्विकली इसको देख सके। सो वेरी फर्स्ट थिंग वी नो कि this is oxygen, and oxygen converts into atomic oxygen. Do you remember how this reaction happens? What is the need? Conditions क्या होनी चाहिए इस रिएक्शन के लिए? चैट बॉक्स में मुझे इसका जवाब चाहिए। My question is कि what is the reaction conditions for the conversion of molecular oxygen to atomic oxygen? This is the dissociation of oxygen molecule. And I have started receiving the responses like UVB, second response is just UV, third response is UVC. So all these questions, the answer is UV radiation, of course UV radiation, but which particular type of the UV radiation we are talking about? There are three types, UVA, UVB and UVC. और A से C में हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी कम होती जाती है, ठीक है। So we are specifically talking about the most energetic form of the UV radiation, that is UVC. Exactly. बिल्कुल, ये अभी जैसे मुझे काफी सारे responses, at least I can see 5 responses in chat box which are saying the same, that we need a UVC. तो हमने यहाँ पे कह दिया कि it's a UVC.
Okay, can you tell me what is the condition for the second step? How can we convert atomic oxygen to ozone? किसके साथ ये रिएक्ट करेगी तो ओजोन बनेगी? I think it's quite simple to guess कि how atomic oxygen converts into the ozone. किसके साथ रिएक्शन होगा इसका? बिल्कुल, very simple. We can just add O2 here. So O2 atomic oxygen के साथ they just simply add up और O3 बन जाता है. ठीक है? Simple. So this is how ozone is created in stratosphere, right? The middle layer of the atmosphere. Now let's talk about how they are destroyed. तो destruction के लिए हमने देखा कि if ozone reacts with the atomic oxygen, it can break back to molecular oxygen. अभी जो हमने कहा था ये reaction, लेकिन we know कि this reaction has some energy का खर्चा इसके अंदर, ठीक है? There is some energy expense involved in this reaction. How ozone can dissociate? It can also take up UVB, और UVB लेने के बाद भी ये टूट के वापस एटॉमिक ऑक्सीजन हो सकता है. तो ये जो पूरा साइक्लिक टाइप ऑफ एक आपको चार्ट नजर आ रहा है, that nicely summarizes कि how ozone is created and destroyed in atmosphere, and this is Chapman mechanism. ठीक है? Or remember, we are not talking about whether these processes are catalytic. Every reaction has a certain speed, right? जिसे हम rate कहते हैं. हमने rate of reaction की बात नहीं की कि कौन सा reaction slow होगा, कौन सा fast होगा. We are not talking about that. ठीक है? यानी kinetics भी कहा जाता है इसको. ठीक है? ये technical term है, लेकिन simply में जब हम ये बातें कर रहे हैं कि how slow or how fast are the chemical reactions, we are talking about the chemical kinetics, right? I hope that is clear to you all. So let's move to the next slide. अच्छा, अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम एवरेज लाइफ टाइम की बात करें ना एक ओजोन मॉलिक्यूल की, तो एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 30 किलोमीटर इट स्टेज फॉर जस्ट हाफ एन आवर. लेकिन जो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर है, यानी जस्ट अबव द ट्रोपोस्फीयर, उसमें ये कई मंथ तक रह सकते हैं. व्हाई? हमने ये कहा कि these are the layers: troposphere, stratosphere and mesosphere. हमने कहा कि इस जगह पे अपर हाफ जो है, इधर तो ये आधे घंटे में बस जिंदगी आधे घंटे की है इसकी. लेकिन ये जो पार्ट है यहाँ पे लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, जस्ट अबव द ट्रोपोस्फीयर, यहाँ पे कई महीने तक पड़ा रहता है ओजोन का मॉलिक्यूल. अब रीजन क्या होगी इसकी? Very good. Well done. Yeah. I think it's easy to tell. We know कि ओजोन को टूटने के लिए दो चीजें चाहिए. एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पड़ी हुई है. बहुत हुआ तो कुछ यहाँ पे पड़ी होगी अपर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर. लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में ना एटॉमिक ऑक्सीजन है ना यूवी बी और सी है जो कि ओजोन मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब करके टूट सकता है. तो लिहाजा जिंदगी बढ़ गई उसकी. ठीक है? उसका जो हाफ लाइफ टाइम, वो बल्कि लाइफ टाइम, नॉट हाफ लाइफ टाइम. Exactly. Great. Okay, let's move to the some mechanisms. Now this was the non-catalytic type of ozone decomposition, जो कि इसमें कोई catalyst involved नहीं होता. Either it is atomic oxygen that is breaking down the ozone, or it is the UV radiation that is breaking the ozone. ठीक है? अब दूसरा हमने देखना है कि catalytic processes कौन से हैं जिनसे ओजोन डिस्ट्रॉय होती है. So we have two mechanisms, mechanism 1 and mechanism 2. And they are very simple. I will be using again this, the chemical equations, जो कि I hope कि आप उनसे, since this is a very diverse class, जिसमें there are people from biology, computer science, electrical engineering, और कहां से हैं,
फिजिक्स से आई हैवंट सीन एनीवन फ्रॉम फिजिक्स, लेकिन जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं सब में से वी डू हैव द स्टूडेंट्स हियर. सो उनसे केमिकल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री तो ऑब्वियस है कि वो तो है ही हैं. तो उनके लिए तो दिस इज दे डू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज वेरी वेल. सो फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि मैं ये जो लैंग्वेज केमिस्ट्री की यूज कर रहा हूँ यानी केमिकल इक्वेशंस, आई होप कि दैट इज नॉट causing much trouble. But they are very, very limited basic type of chemical equations. So how catalysts basically break down ozone? इसके लिए हम कहते हैं कि there are many species जिन्हें हम X से represent करते हैं. These species, they could be atoms, they could be molecules, they react with ozone और उसमें से एक atom निकाल लेते हैं. ऑक्सीजन एटम एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं. एब्स्ट्रैक्ट इज जस्ट द रिमूवल. ठीक है, दे बेसिकली रिमूव. ओके, केमिकली हम इसको या केमिकल शॉर्ट हैंड में हम इसे यूं लिखते हैं कि ओजोन रिएक्ट्स विद एनी एक्स स्पीशीज एंड होता क्या है, मैंने आपको बताया कि अगर आपको केमिकल इक्वेशंस लिखने में मसला हो रहा है तो ओजोन को आप यूं करके लिख लें O3. ठीक है, so basically होता क्या है कि X combines with one O. This is what we said that it is abstracting an oxygen atom. So when it abstracts an oxygen atom, it becomes XO. और बाकी क्या बचा आपके पास? OO is this O2. ठीक है, so I think it's very easy to write these reactions. Nothing to worry about. So अब होता क्या है कि this is remember this is equation 1. What is the fate of this XO species? ठीक है, तो they basically react with what? They need atomic oxygen. ये हमेशा mechanism 1 में atomic oxygen के साथ react करते हैं. And then when they do that, they regenerate. और बाकी क्या होगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ठीक है, ये मुझे मुझे लगता है किसी के सोने की आवाज आ रही है. इज दैट करेक्ट? या मुझे let me try to mute you all. Yeah, it's really very early in the morning and yeah, आपको एक तेज कॉफी का कप चाहिए. So this reaction, I would call it its second reaction. And I can combine, because this is now the sequence is all done. आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ. हमने कहा था कि ओजोन reacts with X species and XO में कन्वर्ट हो जाता है और साथ O2 बनता है. This XO species in second step reacts with atomic oxygen and it is reproduced and along with the atomic oxygen. What is the overall reaction? The overall reaction chemistry में जब हम करते हैं तो we are simply combining steps 1 and steps 2. So अच्छा, remember कि those species which are present on the opposite sides of the arrow, they will cancel out each other. Here it is the product, here it is the reactant. So overall they are cancel out. Okay? What else can cancel out? Can you see? Yeah, the species X. And what else? This is it. So what is the net reaction? Net or overall reaction? हम जब लिखते हैं तो हम कहेंगे कि O3 plus O they give us one molecule of O2 here, one molecule of O2 here, 2O2. So ये जो mechanism 1 है उसका net reaction यही है कि ozone is basically reacting with an atomic oxygen to produce 2O2.
This reaction is very different from the reaction on the previous slide where we talked about that there's 17 kilojoules per mole energy is involved. Here the catalyst is there, so that amount of energy will be decreased by the catalyst. Catalyst final reaction में क्यों नहीं appear हो रहा, इसलिए कि that is regenerated. तो उसका overall it is neither the reactant nor the product. That's why it's not there in the chemical equation. ठीक हो गया? So I think itni chemistry is not going to cause much harm, right? We are trying to stay as simple as possible. सर थोड़ी सी और ज्यादा कर दे केमिस्ट्री. Yeah, I think this is azan. Huh? Of course, के chemistry वालों के लिए this is very simple than the expected. लेकिन हमें थोड़ा सा एम्पैथी दिखानी पड़ेगी बाकियों के लिए भी जो कि हमारे साथ हैं. बट आई थिंक आगे जाके आपको भी मसला नहीं होगा कि इफ इट इज टू सिंपल. ओके, हम इसको एक साइक्लिक वे में भी लिख सकते हैं जस्ट टू कंप्लीट दिस मैकेनिज्म. मैकेनिज्म वन में यही बात है कि भाई वी नीड एन एटॉमिक ऑक्सीजन इन द सेकंड स्टेप. दैट्स इट टू कंप्लीट द प्रोसेस. अच्छा, ये हमने इसको यूं करके लिख दिया है बेसिकली कि O3 reacts with X, produces XO plus O2. This XO species basically in the second step reacts with atomic oxygen to produce the X back, और oxygen is the product जिसको हम O यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई basically this is producing. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि what catalyst used? So right now I am not generalizing what are the species X. In chapter 2 we are talking about quite in detail what are these X species. At the moment मुझे आपको बस इतना बताने दें कि these are the things which are either chlorine, bromine और इनके जो compounds होते हैं वो है. ठीक है, तो ये वो species है. ठीक है, atomic भी हैं, molecular भी हैं, but they contain. इनके अलावा भी हैं और भी चीजें हैं, मतलब नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स भी हैं, लेकिन मोस्टली दे आर क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड्स. ठीक है, आई मीन द एक्स स्पीशीज. सो आई थिंक इस पे और टाइम लगाने की जरूरत नहीं है. दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म एक्स. अच्छा, अब एक और चीजें भी हैं जिसमें हम देखते हैं कि ओजोन कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड अगेन दिस इज ए गैस, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूल है दैट एग्जिस्ट एज ए रेडिकल. अब रेडिकल क्या होता है या फ्री रेडिकल क्या होता है? अच्छा, ऐसी स्पीसीज जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, ठीक है, अनपेयर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, हम उनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं. और फ्री रेडिकल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव थिंग्स. ठीक है, so they react with other substances, other species to produce different products. Free radicals हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर खुदा मतलब बनते रहते हैं बहुत सारे, especially the hydroxyl type of the free radicals. Free radicals को sometimes हम क्या करते हैं, इनके ऊपर जो odd इलेक्ट्रॉन है ना उसको एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है. So this is a free radical. इस टेक्स्ट बुक के अंदर हम कोई डॉट वगैरह इसके ऊपर शो नहीं कर रहे. फिर उसके अलावा मसलन दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सल. ठीक है, हाइड्रोक्सल free radical. And then there are many other. For example, the one which is formed from methane, CH4, this is CH3, और हम कह सकते हैं कि इसके पास. So this will be called methyl. ठीक है, इस तरह के रेडिकल्स होते हैं. So these free radicals in human bodies, they basically can react with DNA and cause the mutation of DNA, और इस तरह से they can cause cancers, और इस तरह से बहुत सारी जो cardiovascular diseases हैं, sometimes they are involved in there. So free radical ऐसी चीजें हैं कि जो which are not new to our bodies. और फिर इसी तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि सर्टेन केमिकल रिएक्शंस इनिशिएट करवाते हैं. और नाइट्रिक ऑक्साइड एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है एक फ्री रेडिकल. ठीक है, इसके पास भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है. तो हम देखते हैं कि हाउ दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय ओजोन.
तो इसके लिए अगेन इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई एम यूजिंग द एनिमेशंस, और कंसेप्ट आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि समटाइम्स जो क्लीन एटमॉस्फेयर है, अमूमन जो पिछली स्लाइड में मैंने एक्स की बात की है ना यहाँ पे, तो एक्स इज ऑलवेज समथिंग दैट इज मोस्टली कमिंग फ्रॉम द पॉल्यूटेड टाइप ऑफ एयर, यानी हमारी एक्टिविटीज की वजह से एक्स स्पीसीज प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि समटाइम्स देयर आर सम एक्स स्पीसीज दैट आर नेचुरली प्रेजेंट इन क्लीन एटमॉस्फेयर में भी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा कि ये जो NO है ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है, फ्री रेडिकल। कैसे एग्जिस्ट करता है मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली जो सॉइल है, इन द सॉइल देयर आर सम माइक्रोब्स, व्हाट दे डू, दे प्रोड्यूस, जमीन के अंदर कुछ आयंस होते हैं जिन्हें हम नाइट्रेट आयंस कहते हैं, ठीक है। आपने शायद नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम सुना होगा, सायानोबैक्टीरिया का नाम सुना होगा। व्हाट दे डू, दे कन्वर्ट दिस इनटू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन गैस में, और इस रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट है वो N2O है, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है, यानी अगर आप इसको स्मेल कर लें तो यू विल हिस्टेरिकली लाफ, ठीक है। तो इसको लाफिंग गैस का नाम भी जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस होती रहती है जमीन से सॉइल बैक्टीरिया की वजह से। दिस NO2 जो कि नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है, दैट कैन रिएक्ट विद द एटॉमिक ऑक्सीजन, और ये थोड़ी सी हमें पता है कि एक्साइटेड फॉर्म में है। एंड व्हाट हैपेंस, मैंने आपको बताया कि N2O को भी आप यूं लिख सकते हैं कि दिस इज N एंड O। अब मैं बॉन्डिंग और चार्जेस नहीं शो कर रहा आपके लिए, ठीक है, बिकॉज देयर आर, आप देख सकते हैं कि बिकॉज द डाइवर्स बैकग्राउंड ऑफ द क्लास। तो होगा क्या कि ये एक N के साथ कंबाइन करेगा तो हमारे पास बन जाएगा NO, और ये भी बेसिकली NO ही है। सो वी आर गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO, ठीक है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल है, दिस इज हाउ इट इज फॉर्म्ड, यानी बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल, nitrous oxide is produced that reacts with the oxygen. अब हम ये सवाल पैदा ये होता है कि can this reaction happen in troposphere? This is for you all. I mean, the reaction here. Can this reaction happen in troposphere? यानी वो हवा का वो हिस्सा जहां पे हम रहते हैं, जहां ज्यादा हमारा इंटरेक्शन है। So what is no? Answer is no. Why no? We need atomic oxygen. ट्रोपोस्फियर में नहीं है, तो हम यही कहते हैं कि NO2 बनता तो यहां पे है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर में, but that moves with the air currents to stratosphere. और ये स्ट्रेटोस्फियर में बेसिकली ये रिएक्शन हो रहा है, NO2 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड NO रेडिकल बना, ठीक है। तो ये दिस ऑल रिएक्शंस दे आर हैपनिंग इन स्ट्रेटोस्फियर। अच्छा, ओके, NO बन गया, सो व्हाट, क्या करता है NO? सो NO जब बनता है तो इट देन बेसिकली रिएक्ट्स विद ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है। हम इसे यूं लिख सकते हैं कि व्हेन NO इज फॉर्म्ड it reacts with ozone molecule again. अब हम ओजोन को, मैंने बताया कि आप ऐसे लिख लें ताकि आपको रिएक्शन करते हुए पता चल जाए, तो बड़ी आसानी सी बात है। इट विल एब्स्ट्रैक्ट एन ऑक्सीजन एटम, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NO2, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और बाकी क्या बचा इसमें? O2। सो केमिकल रिएक्शन लिखना मुश्किल नहीं है, ठीक है, जो कि हमारे पास ये चीज बच गई है साथ। What is the impact? It is destroying ozone. अब यहां पे अगर देखा जाए तो हम वही रिएक्शन लिख रहे हैं, X plus O3 XO plus O2, एग्जैक्टली वैसा रिएक्शन।
लेकिन X को हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि दिस X is NO and this is not a pollutant here, this is naturally produced. ठीक है, तो यूं ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, ये भी कैटालिटिकली इट्स एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट. अब हमने ये देखना है कि हाउ इट इज ए कैटलिस्ट. ये कैटलिस्ट के तौर पे कैसे एक्ट कर रहा है. कैटलिस्ट के तौर पे अगर एक्ट कर रहा है तो इट मस्ट बी रीजनरेटेड एंड वी आर नॉट सीइंग एनी रिएक्शन जिसमें ये जो है ना फिलहाल इसकी रीजनरेशन हो रही है. तो लेट्स सी के हाउ इट इज रीजनरेटेड. सो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म 1, दिस NO2 जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, that reacts with, किसके साथ रिएक्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म 1 टू कंप्लीट द साइकिल? एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ. रिमेंबर द सेकंड स्टेप of the mechanism 1 of the catalytic destruction of ozone is always the reaction with atomic oxygen. अब होगा क्या? अब मैंने बताया कि NO2 को भी हम यूं लिख सकते हैं NNO और प्लस O है. क्योंकि ये कैटालिटिक रिएक्शन है तो हमें एक प्रोडक्ट का पहले से पता है, और वो प्रोडक्ट क्या है? कम ऑन, क्या प्रोडक्ट है? एक प्रोडक्ट हमें पहले से पता है केमिकल रिएक्शन लिखने से पहले, NO. क्योंकि इफ NO इज ए कैटलिस्ट इट मस्ट बी रीजनरेटेड. सो अगर ये रीजनरेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि बेसिकली दिस इज द रिएक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन. वी आर गेटिंग 2 NO मॉलिक्यूल्स. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट. नो, NO2 O के साथ लिख रहे हैं. सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है. मैं इसको जो लिख रहा हूं ना, that was not correct. Let me correct. NO2 को हम जब लिखते हैं ना तो it is 2 O's, not 2 N's. Again, मैं इस पे चार्ज नहीं बताता. One oxygen is singly charge, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव डबल सिंगल बॉन्ड्स. लेकिन it's a very simplified. So यहाँ पे हम ये करेंगे कि प्रोडक्ट्स जो है मैं रिमूव करता हूं. कम ऑन. अच्छा, सो हमने ये देखा कि NO शुड बी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो NO वापस बन गया. बाकी दूसरा प्रोडक्ट अब बताना कोई मसला नहीं है. These are simply the oxygens, they will combine together to give. Okay, अगर ऐसा है तो this is the first step. No, ये तो जनरलाइज किया हुआ था. This is the first equation जिसमें nitric oxide is decomposing ozone to O2 and NO2, and this is the second step जिसमें catalyst. What is the overall reaction? ओवरऑल रिएक्शन क्या है? आप इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करें. काफी मेसी है लेकिन आई होप कि वी कैन स्टिल फिगर आउट. NO2 विल बी कैंसल्ड आउट हियर. व्हाट एल्स विल बी कैंसल आउट? क्या ऑक्सीजन कैंसल हो रही है? NO. हाँ, ये NO और NO और नथिंग. सो O3 प्लस सेंटर वाले रिएक्शन को मेरा ख्याल है भूल जाएं हम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इट इज डिस्ट्रैक्टिंग. ओके, सो वी आर लेफ्ट विद O3 plus O and one oxygen molecule, 2 oxygen molecules. We are adding them up. तो अगेन ये वही रिएक्शन है कि अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म 1 हमने देखा कि दिस इज हाउ it happens. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि how hydroxyl ions are going to decompose into oxygen, तो क्या आप लिख सकते हैं? क्योंकि हमने नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्सिल आयंस भी रखे हुए हैं ना. हम यहाँ पे इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि again O3 will be going to react with an OH or the hydroxyl radical, और बनना इसमें क्या है? हमेशा इसने एक ऑक्सीजन इसमें से निकालनी है. तो हमने ये कहा था कि यू कैन राइट O3 एज दिस थिंग, और OH को भी आप ऐसे करके लिख लें जस्ट टू प्रिडिक्ट द रिएक्शन.
अगर इसने एक ऑक्सीजन उठाना है तो ये वाटर बन जाएगा. नो, इट्स नॉट वाटर, इट्स कॉल्ड HOO. ठीक है, प्लस O2. This will be step 1. In step 1, this species HOO that is going to react with atomic oxygen according to mechanism 1. तो it will be, हमें पता है कि OH will be regenerated. तो इसका मतलब है कि if this thing is separating out, we are left with O2. This is step 2. Combine करेंगे तो this HOO is gone. This OH is gone. So we are left with what? यानी वही रिएक्शन है O3 plus O2. So हाइड्रोक्सिल आयंस भी प्रोड्यूस होते हैं, एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं. आप में से कितने लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि हाइड्रोक्सिल आयंस कहाँ से आते हैं? NO का तो हमें पता चल गया कि द माइक्रोब्स आर इन्वॉल्वड इन दैट. फ्रॉम वेयर OH इज कमिंग. अब मसला ये है कि हमारे पास मेथेन गैस होती है हमेशा एटमॉस्फेयर के अंदर. जितने हम ड्रिलिंग करें ना ऑयल के लिए, तो हमेशा ऑयल के रिजर्वायर जहां पे भी हैं वहां पे साथ गैस भी होती है. नेचुरल गैस आपको पता है सुई में हमारे पास हम इसे एज एन ईंधन यूज कर रहे हैं. तो देयर आर मेनी वेज जिससे हम एटमॉस्फेयर में मेथेन को रिलीज कर रहे हैं. सो दिस मेथेन गैस बेसिकली रिएक्ट्स विद एन एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. और जब ऐसा होता है तो व्हाट इज क्रिएटेड, बेसिकली दिस एटॉमिक ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना इसके साथ, तो एक हाइड्रोजन एटॉमिक ऑक्सीजन उड़ा लेती है, इससे एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है. सो वी आर लेफ्ट विद हाउ मेनी हाइड्रोजन्स विद कार्बन? जस्ट 3. ये भी एक फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है. ठीक है. सो हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल ऐसे जनरेट होते हैं और देन यू कैन सी कि दिस इज हाउ दे कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस. सो हमारे पास जो मीथेन गैस है एयर के अंदर, दैट हैज ए नेगेटिव रोल. मीथेन गैस इज आल्सो ए ग्रीन हाउस गैस, यानी इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये हीट ट्रैप करती है और इससे आपका जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं. सो इट्स ए ग्रीन हाउस गैस and it is also a gas that is causing the destruction of ozone. थोड़ा सा हम स्लो हैं लेकिन आई थिंक इट्स फाइन. ये सारी की सारी चीजें. अच्छा, अब देयर आर सम प्रॉब्लम्स जो कि हमने यहाँ पे देखने हैं और हम उसके बाद मैकेनिज्म 2 की बात करते हैं. I have a question here which I'm going to take at the end. I have noted it down, Varisha, and I'm going to answer it at the end of this lecture, which is soon going to end. अच्छा, luckily आपके पास इस chapter के end में there are many review questions and problems. I strongly recommend कि आप उनको आज ही जाके करें. उससे ये होगा कि जो भी concepts आज हमने सीखे हैं उनको critically देखने का, उन पे सोचने का आपको chance मिलेगा. And then you know कि वो concepts जो हैं आपके जहन में देर तक रहेंगे. फिर मसलन आप देखें कि write out the 2-step mechanism by which hydroxyl free radical catalytically destroys ozone by mechanism 1. By adding together the steps, deduce the overall reaction. अच्छा, ये हमने इधर करना था लेकिन पिछली स्लाइड पे हम कर चुके हैं पहले ही. ठीक है, तो आई थिंक वी जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्टेप. अभी हम खुद कर चुके हैं इसको. So just to tell you कि there are many other, for example, problem 1.8 है कि by analogy with its reaction with methane, write a balanced chemical equation for the reaction by which O star produces OH from water vapors. कि water vapors के साथ ये कैसे produce होता होगा. Try to predict this reaction. If it problems you, कोई मसला है तो जस्ट टेल मी. आई थिंक आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं. फिर इसी तरह से ये क्वेश्चन 1.6 है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है.
Some NO2 molecules are photochemically decomposed to X and atomic oxygen, which then reacts with O2 to reform ozone. इस रिएक्शन के लिए भी मैं आपको बताता हूं कि मैंने अभी OH के लिए या मैकेनिज्म 1 में जितने भी केमिकल रिएक्शंस मैं लिख चुका हूं, दिस इज नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम एनी ऑफ देम. ट्राई टू राइट देम, और फिर उसके बाद इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम्स आई हैव ऑफिस आवर्स टुडे फ्रॉम 4 to 5. उसमें आप ज्वाइन इन कर सकते हैं और वहां पे हम इन चीजों को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, राइट? अगर आप में से किसी को मसला है 4 to 5 में, तो जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल ताकि हम किसी और स्लॉट को देख सकें, ठीक है? So let's quickly talk about the mechanism 2 and then end this discussion of ozone destruction today. अच्छा, mechanism 1 की कंडीशन क्या थी कि we always need an atomic oxygen. For example, this is the first reaction. X species react with ozone, produce XO species, यानी उसको डिकम्पोज करती हैं. सेकेंड स्टेप में ये जो XO टाइप ऑफ स्पीसीज है, दैट रिएक्ट्स विद एटॉमिक ऑक्सीजन. सो एटॉमिक ऑक्सीजन हमें हमेशा चाहिए. अब हमें मसला ये पता है कि लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में तो एटॉमिक ऑक्सीजन आपको मुश्किल से मिलेगी. इसका मतलब है ये रिएक्शन बड़ा स्लगिश होगा इन लोअर एटमॉस्फेयर. तो लोअर एटमॉस्फेयर में फिर क्या है, देयर आर सम अदर पैरेलल रिएक्शंस दैट कैन हैपन. सो मैकेनिज्म 2 ऑपरेट हो जाता है समटाइम्स. उसमें होता क्या है कि हम इसको यूं कहते हैं कि वी हैव सम एक्स कैटलिस्ट दैट रिएक्ट्स विद ओजोन. ये एग्जैक्टली वैसा ही रिएक्शन होता है. टेक्स अप वन ऑक्सीजन फ्रॉम ओजोन एंड इज कन्वर्टेड इनटू O2. हम इसे ये लिख सकते हैं, पहला रिएक्शन हो गया. सेकंड जो रिएक्शन है उसमें भी कोई X बार एनी अदर कैटलिस्ट reacts the same way and produces similar species. So पहले दो जो आपके ओजोन के मॉलिक्यूल हैं वैसे ही डिकम्पोज होते हैं. थर्ड स्टेप में these species which are produced they react with each other instead of with the atomic oxygen. हम इसे यूं लिखते हैं कि XO takes up X bar O. एक स्लाइटली इंटरमीडिएट स्टेज पे हम इसे XO X बार लिख सकते हैं. दिस इज जस्ट द टेम्पररी स्टेट. एंड में क्या होता है, कैटालिटिक स्पीसीज वापस जनरेट होंगी, यानी X और X बार आर आवर कैटलिस्ट, दे विल बी रिप्रोड्यूस्ड. तो इस स्पीसीज में से अगर हम X भी कर दें, X बार भी कर दें, तो वी आर लेफ्ट विद जस्ट O2. तो तीसरा प्रोडक्ट हमारा O2. तो अगर हम इस रिएक्शन को, नाउ द साइकिल इज कंप्लीट, इस रिएक्शन को जो कि मैकेनिज्म 2 कहलाता है, अगर हम नेट रिएक्शन देखें तो क्या है, what are the species that are cancelling out? This XO bar will be cancelled out by this XO will be cancelled out. X bar O और X bar O भी cancel out हो गए. X और X भी cancel out हो गए. X bar और X bar भी cancel out. तो क्या बचा? O3 molecule, 2 O3 molecules. We do not have any other reactants, so let's go to the product form. 1 O2, 2 O2, 3 O2, 3 O2 molecules. तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म 2 का रिएक्शन है कि जिसमें 2 ओजोन मॉलिक्यूल टूट के 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेते हैं. ठीक है? और कैसे डिफरेंट है मैकेनिज्म 1 में कि भाई हमें एटॉमिक ऑक्सीजन अगर दस्तयाब नहीं है तो जो बनने वाली XO टाइप स्पीसीज हैं, ये बड़ी जनरलाइज हमने किया हुआ है इनको. ठीक है? ये आपस में रिएक्ट करके बोथ जो कैटलिस्ट है उनको रीजनरेट कर लेते हैं. अच्छा, इसमें काफी सारी मैंने इसमें टेक्स्ट भी ऐड की हुई है. तो मैकेनिज्म 1 को समराइज करके हमने यहाँ पे लिख दिया. अच्छा, मैं वफा, आपका क्वेश्चन ये है कि हाउ X बार डिफरेंस फ्रॉम X. सो आई एम गोइंग टू टेल यू यहाँ पे कि जो X और X बार है ना, ये इस तरह से डिफरेंट हैं कि इनमें से लेट्स से कोई एक ना एक क्लोरीन होना चाहिए, क्लोरीन, एटॉमिक क्लोरीन होना चाहिए. ठीक है? X बार जो है वो कोई भी और चीज हो सकती है, मसलन ब्रोमीन हो सकता है. ठीक है? इट कुड बी NO2. ठीक है? इट कुड बी ClO, जिसे कहते हैं क्लोरीन ऑक्साइड. ठीक है? मोनोक्लोरीन ऑक्साइड. एंड देयर आर मेनी अदर स्पीसीज. लेकिन यही है कि केमिकली दे हैव द डिफरेंट नेचर. ठीक है?
लाजमी शर्त इसकी यही है कि X और X बार में से कोई एक जो है वो क्लोरीन होना चाहिए, ठीक है। ये क्लोरीन बेस्ड कंपाउंड्स है सारे के सारे। दैट्स ग्रेट। अच्छा, समरी में आपको ये बताता हूँ कि अच्छा, ये जितने हम रिएक्शन लिख रहे हैं, 1 रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, रिमेंबर दैट देयर रेट्स आर डिफरेंट। और ओजोन की डिकम्पोजिशन का जो रेट है दैट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। क्या क्या? ओजोन की कंसंट्रेशन, सनलाइट इंटेंसिटी एंड कैटलिस्ट कंसंट्रेशन। और तीनों पैरामीटर्स ओवरऑल ओजोन की डिकम्पोजिशन को करते हैं। अच्छा, आइडियली जब सनलाइट इंटेंसिटी इज कांस्टेंट और आपके पास कैटलिस्ट भी कांस्टेंट ही है, तो आपकी जो रेट ऑफ ओजोन कंस्ट्रक्शन है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेट ऑफ ओजोन डिस्ट्रक्शन। दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट, राइट। लेकिन अगर आपका रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन किसी वजह से इंक्रीज हो जाए बाय जस्ट बाय द एडिशन ऑफ द कैटलिस्ट के कुछ मॉलिक्यूल्स अगर थोड़े से आ जाएं ज्यादा, तो उन्होंने ज्यादा डिकम्पोजिशन करनी है। अब आपके पास दोबारा ही एक इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन इसमें अब ओजोन कंसंट्रेशन जो है ना वो थोड़ी कम होगी, यानी स्लाइटली लोअर ओजोन कंसंट्रेशन पे जाके एक नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ये कहा कि रिमेंबर कि ओजोन इज डिप्लीटिंग, लेकिन बेशक आपके पास कितना ही ज्यादा कैटलिस्ट क्यों ना हो, you can never totally eliminate ozone from the atmosphere because there are many parallel reactions जिसमें ये रिफॉर्म हो रहे हैं। ओजोन के होल के बारे में हम इसीलिए कहते हैं कि इट इज सेल्फ हीलिंग, बिकॉज ओजोन जो है दैट इज कंटिन्यूसली बीइंग प्रोड्यूस्ड, और इस वजह से हम कहते हैं कि ओजोन का जो होल है उसकी रिकंस्ट्रक्शन भी साथ साथ होती जाती है। अच्छा, अभी तक हमने ये जो बातें की है ना, आई थिंक आई डू नॉट हैव इनफ टाइम, सो आई विल कंक्लूड माय रिएक्शन ही माय टॉक हियर टुडे। और उसके बाद इस स्लाइड पे वैसे भी हम आके जो है ना एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाट आर द एक्स स्पीसीज। मैंने कहा कि दे आर क्लोरीन और ब्रोमीन, हाउ दे आर जनरेटेड, आई थिंक दैट शुड बी इन द नेक्स्ट क्लास। आज मैं ये बात नहीं करना चाह रहा। एंड पे हम क्विकली क्या कर लेते हैं कि इट वुड बी ऑलवेज ए ग्रेट आइडिया जस्ट टू रिव्यू व्हाट वी डिस्कस्ड। सो हम ऐसा करते हैं कि दिस इज आवर रिव्यू क्वेश्चन। मैं इसको ऐसा करता हूं कि पोल्स में ले जाता हूं, ठीक है, ताकि आप मुझे वहां पर रिस्पॉन्ड कर लें, देन हम इसको कंक्लूड करें आज की अपनी टॉक को। सो यूज द सेम लिंक जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है, मैं दोबारा भी इसको कर देता हूं। तो इसको मैं कर लेता हूं एक्टिवेट, और आई होप कि कहाँ गया, हाँ, ओ नो, एवरीवन इन मीटिंग। सो लिंक इज हियर। लिंक हमेशा यही रहेगा। आपके पास क्वेश्चन नया है और दिस इज जस्ट द रिव्यू क्वेश्चन कि आज की हमने जो डिस्कशन की है उसको कैसे आप नहीं, ये पता नहीं हमने नहीं, ये ना, लीव इट, ये तो हमने भी नहीं किया। इसके बजाय मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप अब जाइए इसमें, द क्वेश्चन इज कि व्हाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आपने आंसर करना है कि explain why ozone destruction via reaction of ozone with atomic oxygen does not occur to a significant effect in the low stratosphere. Bakhtiyar ka question, I try to answer you. Okay. दूसरी क्या चीज पूछी आपने कि
I hope that explains Bakhtiyar, right? अगर मसला होता है तो फिर मुझे आप ईमेल ड्रॉप कर दें, मैं उधर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. While you answer the question, I'm skimming through X और X का, अच्छा, एक्साइटेड स्टेट का और फ्री रेडिकल का जो फर्क है ना, वो मैंने बताना है. मेरा ख्याल है कि हमेशा को I hope Varisha that explains. अगर आपको फिर भी मसला रहा तो contact me in the office hours. We are good to go. And in the end, let's see how things going on the review question. Okay, so far this is because there are neither levels of UV, UVC. Yes. Great. So let me write the most frequent answer here. And answer I got is that no atomic oxygen is present in lower stratosphere. Why? Because no UV C is there in to break oxygen molecule to atomic oxygen. Okay, so we are done with the chapter 1. इसके रिव्यू क्वेश्चंस आई स्ट्रांगली रिकमेंड, मैं यहाँ पे कहीं लिखा भी है. अगला लेक्चर जो है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास बड़ी जबरदस्त तस्वीरें भी हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द ओजोन होल एक्सक्लूसिवली, कैसे बनता है, हम इसको कैसे, बड़ी इंटरेस्टिंग एनालॉजीज हैं उसके अंदर. सो नेवरदलेस एंड पे हमने ये देखना है कि जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं. चैप्टर 2 फिलहाल नहीं है, चूंकि वो टॉपिक्स हम आज नहीं कर पाए, सिर्फ चैप्टर 1 ही आपने देखना है इसके अंदर. तो this is it for the day. Let me go back and see if we have more comments in the chat box. Or oh yeah. There's a comment that I should upload the slides just before the lecture, and I think I promised to do that to one of you, and I totally forgot that. I'm noting it down with me, and I will do that, okay, before the lecture. Okay, so this is it for the day. आज मेरा ख्याल है कि 4 से 5 हमारे ऑफिस आवर्स भी हैं, तो उसको ज्वाइन करें. हम इसी लिंक के साथ हम मेरा ख्याल है कि कर लेंगे. अगर कोई चेंज हुआ तो आई कैन शेयर अनदर लिंक, लेकिन इसी लिंक को हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलें. हैव अ गुड डे एंड आई विल सी यू ऑन वेडनेसडेज.